हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट रेडियो के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज़ रेडियो और रेडियो चैनल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल रेडियो दैट इज़ इंटरनेट रेडियो के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट रेडियो that is also a web radio or a net radio or a streaming radio or an e-radio webcasting is an audio service transmitted via the internet. Internet radio involves streaming media presenting listeners with a continuous stream of audio that cannot be paused or replayed, much like traditional broadcast media. In this respect, it is distinct from on demand file serving. So, whenever we talk about internet radio, उसके अलग अलग नाम है। कोई उन्हें वेब रेडियो कहता है, कोई नेट रेडियो कहता है, कोई स्ट्रीमिंग रेडियो कहता है, कोई ई रेडियो वेबकास्टिंग कहता है। लेकिन ये सारे ऑडियो सर्विसेज है जो ट्रांसमिट किए जाते हैं वाया द इंटरनेट। इंटरनेट रेडियो में स्ट्रीमिंग इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे मीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक मीडिया प्रेजेंटर होता है, कुछ लिसनर्स होते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ ऑडियो चलता रहता है जिसे आप रोक नहीं सकते। आप अपने सिस्टम को बंद कर सकते हो, लेकिन उनकी स्ट्रीमिंग को आप नहीं रोक सकते, ना ही रिप्ले कर सकते हो, ना ही फॉरवर्ड कर सकते हो। So it's like a traditional broadcast media. In this respect, it has a distinct from on-demand file serving. तो जब भी आप ई रेडियो या फिर इंटरनेट रेडियो सुनते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फीचर है, दैट इज एन ऑन डिमांड फाइल सर्विंग। आप अपने डिमांड्स को वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट रेडियो इज similar to our normal radios. Now, how it is different from podcasting. Internet radio is also distinct from podcasting, which involves downloading rather than streaming. Many internet radio services are associated with corresponding traditional radio stations. Internet radio services are usually accessible from anywhere in the world. For example, one could listen to an Australian station from Europe. Some major networks restrict listening to in country because of music licensing and advertising concerns. So, internet radio is also distinct or different from podcasting. Podcasting involves downloading rather than streaming. So, many internet radio services are associated with corresponding traditional radio stations, and whatever they stream on their radio station or radio channels, they align it and connect it to the internet and then serve it in the name of e-radio or web radio. इंटरनेट रेडियो सर्विसेज जो है वो एक्सेसिबल है कहीं भी किसी भी दुनिया में, लेकिन बहुत सारे म्यूजिकल राइट्स के वजह से वो उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर ही। अगर वो मार्केटिंग करते हैं या फिर कोई एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर कोई म्यूजिकल कॉपीराइट्स को ब्रीच करते हैं, देन कहीं ना कहीं वो लीगल बैटल शुरू हो जाता है। सो दैट फॉर दैट रीजंस they avoid crossing the border and they restrict the streaming under their territories. Now there are some advantages for these e-radios or web radios or internet radios. Traditional radio station broadcasts are limited by two factors: the power of the station's transmitter, typically 100 miles, the available broadcast spectrum. You might get a couple of dozen radio stations locally. So हमारा जो नॉर्मल रेडियो चैनल है, जो लाइव एक हमारे मोबाइल फ़ोन में प्ले होता है, रेडियो इंस्ट्रूमेंट या रेडियो डिवाइस में प्ले होता है, इट हैज़ अ टिपिकली 100 माइल्स ट्रांसमीटर, और it covers in 100 miles of area and transmit the air waves to that particular region. लेकिन इंटरनेट रेडियो का कुछ अलग ही एडवांटेज है। इट कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री बिकॉज एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। द अवेलेबल ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम, रेडियो चैनल्स के लिए बहुत सारे ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल है, और आप कपल ऑफ लोकल रेडियो स्टेशंस भी देख सकते हो अपने रेडियो चैनल में। Internet radio has no geographical limitations. The potential for internet radio as is as vast as cyberspace itself. तो जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ पे भी आपका
ई रेडियो या फिर वेब रेडियो या इंटरनेट रेडियो पहुंच सकता है. देयर इज नो लिमिटेशन और नो रिस्ट्रिक्शंस until and unless a company or a radio station applies or thinks of it. Internet radio is not limited to audio. An internet radio broadcast can be accompanied by photos or graphics, text and links, as well as interactivity such as message boards and chat rooms. This advancement allows a listener to do more than listen. सो इंटरनेट में जब आप वेब रेडियो जा चेक करते हो या फिर इंटरनेट रेडियो देखते हो तो देर इज़ अ पर्टिकुलर वेबसाइट. उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपको वो सुनना होता है. मिनिमाइज भी कर सकते हो, नॉट एन इशू. लेकिन टू कीप इंटरैक्टेड, टू कीप योर लिसनर्स बिजी एंड टू गिव देम अ फील दैट यू आर लिसनिंग टू समथिंग विच यू लव, तो वहाँ पे कुछ फोटोज़ भी वो ऐड करते हैं ग्राफिक वाइज. थोड़े ग्राफिकल कंटेंट के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं आपके साथ, वन वे इंटरेक्शन. कुछ टेक्स्ट एंड चैट बॉक्स भी वो अवेलेबल करते हैं ताकि आप इंटरेक्ट करो, आप अपने रिक्वेस्ट को वहाँ पे उनको भेजो एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर और योर रिक्वेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन दे विल प्ले योर सॉन्ग. The cost of getting on the air is less for an internet broadcaster. Internet radio can appeal to micro communities of listeners focused on special music or interest. अब ऑन एयर जाना है इंटरनेट पे, ठीक है, तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टर के लिए वो कॉस्ट जो है बहुत कम है. इंटरनेट रेडियो कैन अपील टू माइक्रो कम्युनिटीज ऑफ लिसनर्स फोकस्ड ऑन स्पेशल म्यूजिक और इंटरेस्ट. तो स्पेशल म्यूजिक एंड स्पेशल म्यूजिकल इंटरेस्ट के हिसाब से एक माइक्रो कम्युनिटी भी वो क्रिएट कर सकते हैं. सो अगर आपको फोक सॉन्ग सुनना है तो यू कैन क्लिक ऑन पर्टिकुलर टैब. अगर आप इंडी पॉप सुनने वाले हो तो आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक कीजिए. सो म्यूजिक विल बी अवेलेबल एट योर ईयर्स, राइट. लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. Since all of these radio stations are visited by listeners looking for free music or entertainment, they do not necessarily contribute to the revenues of the stations. Barring a few successful internet radio stations, no one has had considerable success with advertising generated revenue because internet crashes. So, इंटरनेट या फिर वेब रेडियो जो है इतना सक्सेस नहीं हुआ. 100 में से एक आध 2-5 लोग ही सक्सेस हो पाए या 5 कंपनीज ही सक्सेस हो पाए, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है इनको, एडवर्टाइजमेंट से. एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है, उनको लगता है कि लोग इंटरनेट सिर्फ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर वीडियो देखने या सुनने के लिए, बट दे नेवर एवर डेडिकेटिवली विजिट द वेबसाइट और ई रेडियो चैनल स्पेशली फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक. एंड देन इंटरनेट क्रैश हो सकता है. इस रीज़न से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर मार्केटियर्स जो है वो नहीं इन्वेस्ट करते और वहाँ पे प्रमोट नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल डिसएडवांटेज है. नाउ हाउ इट वर्क्स, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम.